books and literature. This evening, I stand upon this platform not merely as a founder who wants to advocate writing, but as a leader and a learner with a vision to bring together myriad minds of intellect. It is not only for pleasure that I started this community, but for a cause. There is a great cause behind this community because there are so many problems which are there in the country today, and it is only the intellectual people who can find answers to all the problems the country or the world is facing today. We also have to make this place world a better place for living. Once upon a time, it was said, poets are born and orators are made. But today, with conviction, I say that writers and poets can be made and formed. In every person, there is a hidden I'm 19 and I am the author of the novel Supernatural Secret. I would like to give a little depth into what my book is all about. So it's about this main character named Annabeth. She is an introvert girl who's a teenager who's going through lots of issues that teenagers normally go through. And she's in her shell, she's comfortable and everything. But then this antagonist named James, he's an alpha of a werewolf pact who comes in and pushes her out of her shell into this cruel world which she has to face. So now that she's pushed out of her shell, she needs to go through all the hurdles and all the things that she's never faced in life. And she comes to know that her life is all but a secret. So that is all my novel is about. I hope that you like the novel. Please go through it, and I hope all my friends who are here to support me also love the novel because it's all about you, it's all about teenagers. So yeah, and yes, there are my paintings also out here. You must have heard about it. My paintings also play a really important role because they are like very delicate, detailed paintings that are there. So if you like them, you can buy them as well. And yes, I'm so happy to see so many of my friends, so many people, everyone out here who's come. Thank you so much for coming. Thank you so much. And of course, other than that, when I met her, I was completely shaken up by her energy, her knowledge, her force to be able to get girls out her age who are inconfident of themselves to bring out and talk to the world. I mean, at that tender age to think about her contemporaries and about herself and her mind and to bring it out with this confidence, I think she's just got sent. I told her mom yesterday one thing. God has sent her through you for the world. She's not your daughter anymore.
and I can see the piece of art that she's been doing. So my son is actually into movies and making movies. He's won about 12 awards internationally and nationally past 1 year. So he has a great aesthetic sense of art and things like that. So when she showed me this, the art that she has designed, I quickly took it to my son. He was in the other room meeting with another young director. He said, "Can I meet the artist?" He just couldn't believe the mindset which has gone in making this art. Trust me, we all here today. In 10 years' time, there'll be a queue of people taking autographs out of her in various things. And I really wish this upon her. Thank you so much for having me over here and actually promoting this young. मुझसे ऐसा भेदभाव क्यों? घर के अंदर के आईने को तो सब कुछ बताते हो, उसे अपना तन मन धन सब दिखाते हो, अपनी सारी खुशी बांटते हो, अपने सारे गम काटते हो। उसने तुम्हें अपने पर अहंकार करते हुए देखा है, कभी उस अहंकार पर प्रहार करते हुए देखा है, कभी दुखों में गमगीन देखा है और कभी ध्यान में लीन देखा है। कभी श्रृंगार से सुंदर तुम्हारा चेहरा देखा है, कभी उस पर आंसुओं का डेरा देखा है। जो रिलेशन होता है वो हमने पहले तो बताया कि आप समझिए अपने आप को वॉट यू आर। तो वेदों में हर जगह यही कहा गया कि वो थोड़ा पढ़ने को मिला तदादृष्टु स्वरूपेवस्थानम, अपने स्वरूप में वस्तु को जीवन का ये उद्देश्य है। और यही से स्वास्थ्य की परिभाषा तदादृष्टि, ये योग सूत्र का तीसरा सूत्र है जो कभी कोई चर्चा में नहीं आती। यहाँ से WHO ने अपनी परिभाषा ली, श्वास माने स्वयं माने अपने में स्मरण रहना। आपका श्वास कैसा है तो पूछते हैं, लेकिन कुछ अर्थ को नहीं समझते। आप अपने में आप मोटे हैं। चलो नेक्स्ट थैंक यू। ये जो किताब है, ये जो उस लेखन है वो एक आंतरिक व्यक्ति है और आंतरिक व्यक्त जब होती है तो हमने कहा कि 4 नहीं ऐसी 4000 किताबें आ सकती हैं। तो तुम लोग इस तरह से मिलते हो और ऐसी सक्षम जो है युक्ता के साथ जो है माध्यम से लोग सामने आए, तो मुझे लगता है ये समाज के लिए बहुत अच्छा है और ये जोड़ने वाला है, ये कनेक्ट करने वाली चीज़ है कि हम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर? ये लेब्रिथ ऑफ रिलेशनशिप्स इन्होंने लिखा है। आई थिंक आई शुड कॉन्ग्रेचुलेट देम, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा सक्सेस चाहिए ज़िंदगी में तो अकेला अपने आप करने की कोशिश कीजिए। अगर असाधारण सक्सेस चाहिए तो आपको रिलेशनशिप चाहिए, और चाहे वो कंपनीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो। मेरा ज़िंदगी मोस्ट ऑफ द टाइम कंपनीज में निकला है। जब मैं हार्वर्ड में जाकर रिसर्च कर रहा था वहाँ पे हम लोग ने एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंटली देखा कि अगर आपको कंपनी का चेयरमैन को भी सक्सेसफुल होना है, इंटीमेसी लोगों के साथ क्रिएट करना ज़रूरी है। आशीष जी यहाँ देखिए, सामने देखिए, आशीष जी सामने देखिए, हाँ जी ऐसे इमोशंस उनके अंदर भीतर क्या उमड़ रहा है उसको समझने के लिए जब तक आप अपना एक अपनी ओर से कोशिश नहीं करते तो आपके कभी भी जो भी मनसूबा है, जो भी आपके डिज़ायर्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, कभी फुलफिल नहीं होते। तो ये किताबें ये भी दर्शाता है जब इतने सारे लेखक एक साथ आते हैं तो लेब्रिथ ऑफ रिलेशनशिप से क्या वंडर्स निकलते हैं। So I think I need to congratulate them and I wish them the best. Thank you. Which is into events management and curation, and of course media and PR and marketing consultancy. And I have also requested Mr. Harish ji from RIMCO, who is our gift sponsor for today. So I thank Harish ji for coming over here and making this event. जी हरीश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बुक लॉन्चिंग पे आप आए हो और आपके निम्को इंडस्ट्री ने इसको स्पॉन्सर्ड भी किया हुआ है,
तो क्या खास बातें आपने देखा इस बुक में जिसको आपने स्पॉन्सर करने की प्रयास किया या कोशिश किया या उनको सपोर्ट करने का आपके मन में बात आई? जी हरीश जी। छोटी सी बच्ची है सर, जिसने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, इतना अच्छा बुक लिखा है। एंड मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने देखा, व्हाटएवर आई हैव सीन पर्सनलाइज, दैट इट इज़ रियली अ वेरी वंडरफुल थिंग। एंड चैताली जी, आई थैंक यू वेरी मच। इट्स अ वेरी ग्रेट इवेंट एंड इट्स ऑनर फॉर निम्को सोप फॉर बीइंग द गिफ्ट पार्टनर फॉर द लॉन्चिंग ऑफ द स्पा। ओके हरीश जी, निम्को की अगर बात करें तो किस प्रकार के प्रोडक्ट या क्या काम करती है इंडस्ट्री, ये निम्को इंडस्ट्री? निम्को सोप इज द ओरिजिनल कंपनी सिंस 1962। मेरे पिताजी गोपीचंद कोटवानी जी ने एस्टेब्लिश की थी। मैं एक कंपनी में, आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी आफ्टर हिम। वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरर Nimco Shikakai, the original 1962 company. Okay, that's the thing. Shikakai. We have sandalwood, we have sulfur soap, this for skin care, carbolic soap we have, that is also for skin care, and we have launched now a new toothpaste, that's a gold toothpaste. It is for VVIP. It doesn't contain any SLES, and we have launched this charcoal Kenwood Nimco soap in the market. We are basically into all the FMCG sector, like phenol, face wash, body wash, shampoos, conditioners, detergent powders, laundry soap, each and everything. And let me tell you one thing, Nimco Industries, that is Harish Kotwani, we have associate companies in which we have manufactured soap for Hindustan Unilever Limited, Lux, Rexona, Hamam, and for Godrej soap we have done Crowning Glory, Marvel, Synthol, Shaving Round, and all their detergent powders and bars. We have also manufactured the leading Johnson & Johnson soaps for more than 30 years in our factory. And we are presently doing Medimix also in our associate concern in Hyderabad. Now Nimco, since 1962, we are into each and everything, soaps, detergents and FMCG. Thank you. थैंक यू सर। चैताली, जरा सा अब आप बताएंगे कि आज जो ये 4 बुक्स रिलीज़ हुए हैं, स्पार्क्स रिलीज़ कर रही है, इनका मेन इंटेंशन क्या है? कहाँ किसी पब्लिशर को एक बुक निकालना बहुत भारी पड़ता है, ये 4 बुक एक साथ निकालना है। तो इनका ये इंटेंशन है कि ये एक्चुअली जितने एडिटर्स एंड राइटर्स हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। उन्होंने एक सहाना जी ने जो उनका जो प्लेटफॉर्म है स्पार्क, जिसमें सारे एडिटर्स और ऑथर्स ऑलरेडी राइटर्स जो भी हैं उनके ग्रुप में हैं, उनके प्लेटफॉर्म में है, वो ये प्लेटफॉर्म उनको दिया है कि सब लोग साथ में आके इस बुक को लॉन्च, अपने अपने बुक्स को लॉन्च करें। थैंक यू जी। इम्पोर्टेंट के यंग इंडिया है वो अपनी इंडिया की बहुत आगे बढ़ा रही है, इंटरनेशनली आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे सोच विचार है यंग इंडिया के वो बहुत अच्छी तरह से बाहर आ रहे हैं। बुक के जरिए बहुत लोगों को पढ़ने मिलेगा, बहुत लोगों को एजुकेशन मिलेगा, और मैं अपने इंडिया की फ्यूचर बहुत अच्छा देखना चाहती हूँ। और ये दिख रहा है, जैसे 19 साल की लड़की आज बुक लॉन्च कर रही है अपने नाम पे, आई थिंक वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है इंडिया के एजुकेशन के बारे में। कुछ पेंटिंग के बारे में भी जिक्र कर रहे थे मैम। जैसे एक आर्टिस्ट होता है वो सिर्फ लिखता ही नहीं है, उनके बहुत सारे अलग अलग प्रचार अपने दिल से वो प्रचार कर सकते हैं। तो उसका और एक इसने बताया कि वो फैशन डिज़ाइनर हैं, साथ में पेंटर भी हैं। तो ये इनके लिए आसान चीज़ें अपने जो मन में जो भी ख्याल है बयान करने के लिए, उससे अच्छा ज़रिया कौन सा हो सकता है पेंटिंग के थ्रू। तो जब मुझे उसने पेंटिंग बताई तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगा, क्योंकि एक अंदर इतना उसमें वॉल्केनो जैसा है ये लड़की में कि हर तरह से वो उभरना चाहती है, चाहे पेंटिंग का जरिया या तो डिज़ाइनिंग में या तो लिखने में, वो इंडिया को संवारना चाहती है। उसके दिमाग से मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में जब सोच रही है कि मेरे जैसी इतनी सारी लड़कियां दुनिया में जो अंदर भर भर के सब दबा के बैठी है, उनको बाहर निकालना और कौन सा जरिया अपना सकती है। तो उसने जब मुझे पेंटिंग दिखाया, पेंटिंग में उसने क्या दिखाया है, एक नेचर है कि हम नेचर भी अपना सकते हैं और
और टेक्नोलॉजी भी अपना सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो नेचुरल अपना कर टेक्नोलॉजी भूल जाओ। इंडिया वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, इंडिया आगे बढ़ रही है, तो टेक्नोलॉजी भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसने दोनों को इतना सुपर तरीके से बैलेंस किया हुआ है, मैं तो तंग रह गई। मैं इंटरनेशनली इतना ट्रैवल करती हूँ, बहुत सारे आर्टिस्ट को देखती हूँ, लेकिन जब इंडिया में ये 19 साल की लड़की ये सोच रही है एक मज़गांव में बैठकर, तो उससे बड़ा तो कोई मैं नहीं सोच सकती कि दुनिया में और कोई बड़ी बात है। इसलिए पूरे मैं उसकी मूवी को बोलती हूँ, आप तो खाली जरिया हो, अभी पूरा स्टार उतर के आया है इंडिया में। और ये लड़की 10 साल में आप देखेंगे, आप पीछे भागेंगे इसके कि हमको ऑटोग्राफ। ज़रा क्या कुछ कहेंगे, मैम ने इतना कुछ कह दिया आपके बारे में, क्या कुछ कहेंगे? And she's such a supportive person to me, and I can't believe it that she said such good words about me. I can't believe it, and I hope that I'll be able to work with her and kind of get educated by her. There's so much knowledge that she gave me, so I'm really excited to be. You didn't bribe me, but ये naturally निकला है. I think it was all natural what I felt about her. Nothing. I met her only once yesterday, but I guess I just judged what she's doing. So Thank you so much. not at all. Please. थैंक यू मैम। Wish you all the best and success. चल अखिलेश रेडी? या रेडी? चले अखिलेश भाई। अरे ये बंद करा दो भाई प्लीज, ये माइक बंद करा देना प्लीज। अरे यार ये से ऑफ कर दूँ यार, ये से ऑफ कर। Sound guys, can we please have the feedback turned down, please? रेडी? ओके मैडम, आज की शाम आपके जो किताबें आज रिलीज हो रही हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएंगी? या आज स्पार्क ने 4 बुक रिलीज किया है। लैबिरिंथ ऑफ रिलेशनशिप्स, लैंड ऑफ आउटपोरिंग्स, सुपरनैचुरल सीक्रेट एंड कोड अनकोड योर साइकी। एंड these are books written by a community called Spark. Spark community ने ये बुक्स लिखा है। It is a writers community जो मैंने स्टार्ट किया था, and they have written amazing articles. It is a combination of brave stories, fiction, then their anecdotes and experiences. It is a collection of all this. Melange of outpourings is a collection of emotions. They have written mainly about the gratitude, and on labyrinth of relationships they have written, because relationships is a complex thing. It is like a maze, and there are lots of problems in the today's society where relationships are not going very easily, and divorces are there, lot of divorces are there. So we have, all our authors have come together to give a remedy for these relationship crisis which is occurring in this world. Okay? मैडम, एज ए पब्लिशर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आज की तारीख में किसी को एक बुक निकालना मुश्किल पड़ता है, आप 4-4 बुक रिलीज कर रही है एक साथ में। अब ये इसका इंस्पिरेशन कहाँ से आया? It's all the cooperation of my dear Sparkians who are all working day in and day out for me, and they are the one who is supporting me in editing, in creating creatives, and they're doing a lot. डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, इसी बेस पे आप ऐसे डॉक्टर एक टाइम पे एक ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं, यहाँ 4-4 पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब 4 बुक्स रिलीज किया जा रहा है। कि मैं आपने कहा कि ये जो हिंदी में से अच्छी तरह समझा जाए, तो ये स्पार्क का मतलब होता है कि आंतरिक अनुभूति, इसे कहते हैं अनुभूति। मतलब जो अंदर की तरफ आप महसूस करते हैं, स्पार्क अंदर से कुछ निकल रहा है जी, जिसको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो माइक ऊपर बुक है, परिवर्तन अब जो रिलेशनशिप, अबीर भाई थोड़ा माइक ऊपर, कि जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्तों से जो है कि जो रिलेशनशिप है वो एक नदी की तरह होता है, और रिलेशनशिप स्मूथ नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से ये अनुभव की आंतरिक अनुभूति आई है, जो ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति अंदर आती है, ऐसी 4 नहीं, ऐसी 4000 किताबें सामने आ सकती हैं, और क्योंकि लोगों की अनुभूतियाँ जो है व्यक्त करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। तो मैडम ने जो प्लेटफॉर्म लिया, तो मुझे लगता है उससे लोगों की अनुभूति को बाहर लाने का मौका मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है कि ऐसी किताबें जो
जो थ्योरेटिकल लिखी जाती हैं वो अलग है, लेकिन इन किताबों को देखने पर सीखिए। रिसर्च किताब है, संयोग से एक आर्टिकल मुझे भी लिखने को बोला, आई वॉज वेरी बिजी, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं डिक्टेट कर देता हूँ, आप उसे लिख लें। ऐसा भी कि हमने उसे बोला और डायरेक्टर ने उनको रिकॉर्ड किया एंड देन वो चीज़ तो लीगल लिबर्टी दी, मतलब उसको आपके अंदर जो भाव है जैसे ये आर यू हैप्पी विथ योर सेल्फ, हम लोग अपने से ही जुड़े नहीं हुए हैं। सो बाहर जुड़े कैसे, मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए, ऐसा सिर्फ होता है जो है कि हमारे